Good morning, students. Today we are going to discuss about functional groups. We have already read about alkenes, alkenes and alkynes, and also about saturated and unsaturated hydrocarbons. Today we are going to deal with functional groups. Functional groups are, we can say, it is an atom or group of atom that replaces hydrogen from the hydrocarbon and get attached with the hydrocarbon and change its property. For example, I am having a functional group for example chlorine or chloro group, and I want to attach this chloro group to methane. So from the CH4 I will replace one hydrogen and attach one chloro group. So the formula will become CH3Cl. One hydrogen is replaced by the chloro group. So the resultant molecule that is formed is CH3Cl. Now this CH3Cl will have properties different from CH4. So here Cl is functional group, CH3Cl is new product formed by replacing hydrogen which have the properties different from the former or from the parent molecule, right? So here are few examples that are in your course about functional groups. First comes halide. In halide all the halogens are included, but specifically or more concerned the more concerned halogens that we are taking is chlorine and bromine. We can also take iodine, but in your course mostly the compounds containing chlorine and bromine are included. So CH3Cl, we used to call CH4 as methane, but when we replace one of the hydrogen of methane with Cl, we call it as chloromethane. And if we replace one of the hydrogen with bromine of ethane, what is the general formula of ethane? C2H6. Now if I am replacing one of the H with bromine, I'll call it as bromoethane, and C2H6 was ethane and C2H5Br is bromoethane. Now next comes alcohol. In alcohol I will add a suffix to the name of hydrocarbon. For suppose I was having methane CH4. Now I am replacing one of the hydrogen with OH. OH is what? Wherever OH will come, we will say that functional group attached is alcohol and the suffix will be added is all. So if I replace hydrogen of methane with OH, it will become CH3OH. Now the prefix, that is meth, will remain same. I have given you the table also in which various prefixes were written, that if the carbon atom is 1 we use meth, if the carbon atoms are 2 we use eth. So here I was having methane, I removed hydrogen, added OH, so it will become methanol. Why all? Because alcohol functional group is present. Similarly, if I was having ethane, that is C2H6, and I am removing one hydrogen and adding OH of alcohol, I will get ethanol. Similarly, the next functional group is aldehyde. In aldehyde, I will add CHO by removing one of the hydrogen. Now, it needs to be noted here that in methane, I was having CH4, and if I will remove one hydrogen and add CHO, then the number of carbon atoms will be 2. So it is changing the total number of carbon atom. So in such case, methanol is an exception which with general formula HCHO. So here I am just adding one hydrogen and not removing one hydrogen. So it will become HCHO methanol, and in ethanol we were having C2H6 as the formula of ethane, and what I'm adding is one more carbon and hydrogen, so the general formula will be CH3CHO. You can also remember it in such a manner that in methanol we add one hydrogen, and in ethanol we remove hydrogen and add CHO from methane. जैसे कि CH4 था हमारे पास में, CH4 में से मैंने एक हाइड्रोजन हटा के CHO लगा दिया, तो ये क्या बन गया? इथेनॉल. यानी कि हम एक एक स्टेप बैकवर्ड चलते हैं इसमें. अगर मुझे प्रोपेनॉल बनाना है तो मैं इथेन में एक हाइड्रोजन हटा के CHO जोड़ दूंगी. अगर मुझे ब्यूटेनॉल बनाना है तो मैं प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा के CHO जोड़ दूंगी. सो एल्डिहाइड में एक्सेप्शन है, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड.
कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में सिंपल जहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, HCOOH, यहाँ पर कितना कार्बन है, ओनली वन कार्बन इज प्रेजेंट, सो वी विल term it as मिथेनोइक एसिड बिकॉज वन कार्बन मीन्स मिथ। एंड ओइक एसिड कहाँ से आया, ये जो सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। अब एल्डिहाइड के बाद से हम रिप्लेसमेंट का जो फंडा है वो भूल के हम सिर्फ ये देखेंगे कि उसमें कार्बन कितने हैं और उसके हिसाब से वी विल गिव द नेमिंग विद एडिशन ऑफ सफिक्स। नाउ CH3COOH, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2, और जहाँ पर भी COOH आ गया यानी कि वो एसिड है, और जब एसिड होगा तो हम सफिक्स क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, राइट। कीटोन में C डबल बॉन्ड O यानी कि ये जो ग्रुप है CO ये अटैच करते हैं हम, और इसके दोनों तरफ कुछ ना कुछ एडेड रहता है, जैसे कि CH3COCH3। अब यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं, 3, एंड सफिक्स कौन सा ऐड करेंगे, ऑन, सो इट विल बिकम प्रोपेनॉन। CH3COC2H5, यहाँ पर कितने कार्बन है, 4, एंड फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, एंड सफिक्स कौन सा ऐड करेंगे, ऑन, सो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, एंड सफिक्स क्या है, ऑन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉन। नाउ कम्स होमोलोगस सीरीज। होमो मीन्स क्या होता है, सेम या सिमिलर, ठीक है। होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड हु सक्सेसिव मेंबर्स डिफर्स बाय CH2 ग्रुप। यानी कि एक फर्स्ट मेंबर में अगर मैं CH2 ग्रुप ऐड कर दूं तो मेरे पास सेकंड मेंबर आ जाएगा, सेकंड मेंबर में मैं और CH2 ऐड कर दूं, सो आई विल गेट द थर्ड मेंबर। एल्केन्स की बात करें तो फर्स्ट एल्केन अगर मुझे पता है तो मैं CH2 ऐड कर करके नेक्स्ट एल्केन्स डिटेक्ट कर सकती हूँ। एल्कीन का फर्स्ट मेंबर मुझे पता है तो मैं उसमें CH2 ऐड कर करके फर्दर मेंबर्स डिटेक्ट कर सकती हूँ, एंड सेम गोज़ विथ एल्काइन ऑल्सो। सो लेट अस टेक द जनरल डिस्कशन अबाउट एल्केन्स, हाउ वी आर गेटिंग होमोलोगस सीरीज इन द एल्केन्स। फर्स्ट मेंबर आई एम हैविंग इज मीथेन, एंड हम सब ने पढ़ा है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या होता है, CnH2n+2, n में बी एनी होल नंबर। अगर मैं Cn की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ तो C1H2 इंटू 1+2 यानी कि C1H4, जिसको हम CH4 भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास पहला मेंबर है एल्केन का, इसमें मैं CH2 और जोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा, C2H6। अगला मेंबर आ गया इथेन, इफ़ आई फर्दर ऐड CH2 आई विल गेट C3H8, इफ़ आई फर्दर ऐड CH2 आई विल गेट C4H10 ब्यूटेन। सो होमोलोगस सीरीज़ मतलब क्या, ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड जिनमें CH2 जोड़ते जाने से हमें नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर्स मिलते हैं, एंड दे विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो, राइट। सेम गोज़ विथ एल्कीन्स। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, 1 पुट करेंगे तो C1H2, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी जब मैंने पिछला लेक्चर दिया था हाइड्रोकार्बन का, कि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड बनने के लिए एट लीस्ट हमारे पास 2 कार्बन्स तो होने चाहिए। तो यहाँ पर जो सीरीज़ है वो C1 से नहीं स्टार्ट होती जैसे एल्केन में होती थी, यहाँ पर द सीरीज़ विल स्टार्ट विथ C2। सो इफ़ आई पुट 2 इन प्लेस ऑफ n आई विल गेट C2H4 एज माई फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, एंड जहाँ पर कार्बन 2 है वहाँ प्रीफिक्स होगा एथ, और एल्कीन में सफिक्स होता है इन। सो माई फर्स्ट मेंबर इज़ इथीन। इथीन में मैंने CH2 ऐड किया, आई विल गेट C3H6 प्रोपीन, और CH2 ऐड किया, आई विल गेट ब्यूटीन। अब ये जो नीचे स्ट्रक्चर्स है प्लीज़ इन स्ट्रक्चर्स को देखना बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटीन, सो यू शुड नो द स्ट्रक्चर, ठीक है। डबल बॉन्ड जो है, अब जैसे कि ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है, ब्यूटीन में अगर तुम्हें स्पेसिफाई नहीं किया है कि डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में होगा या सेकंड और थर्ड के बीच में होगा, तो तुम डबल बॉन्ड कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। बट अगर तुम्हें पोजीशन स्पेसिफाई की हुई है कि ब्यूट 2 इन यानी कि फर्स्ट सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू होगा, बट दैट वुड बी मच डिटेल, दैट इज़ नॉट इन योर कोर्स। अगर ब्यूटीन सिंपली दिया हुआ है तुम फर्स्ट सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ, दैट विल बी मच बेटर।
नेक्स्ट मेंबर इज़ एल्काइन. एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2. अगेन यहाँ पर भी एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन टू कार्बन्स, सो इट इज़ नेसेसरी दैट वी आर हैविंग टू कार्बन्स among which triple bond can be formed. So the first member will be of carbon 2. If I put 2 in place of N, then I'll get C2H2. So C2H2 means दो कार्बन, prefix is eth and suffix in alkyne is ine, so it will become ethyne. Again homologous series मुझे निकालनी है, तो मैं CH2 ऐड करूँगी तो it will become C3H4 propyne. Again if I am adding CH2 it will become butane. So and this is the structures of ethyne, propyne and butane. Just keep one thing in mind, कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है. अब अगर यहाँ पर जैसे फर्स्ट कार्बन है उसने एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, एक हाइड्रोजन बना दिया, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए. सेकंड कार्बन ने भी ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, एक हाइड्रोजन बना दिया, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए. अगर तुम्हें ऐसा कहा है कि तुम्हें एक एल्काइन का स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, तुमने एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, उसके अलावा जितनी भी खाली जगह बच जाती है पुट हाइड्रोजन, ताकि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए, बिकॉज कार्बन कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स. अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो एक ही पोजीशन खाली बची, वहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा. अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो 2 पोजीशन खाली बची, वहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे. सो लाइक दिस मोर यू विल प्रैक्टिस, मोर यू विल लर्न हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. Comes chemical properties of carbon compounds. सबसे first chemical property है combustion. Combustion we all know that burning of anything in the presence of air, and it is an exothermic process. exothermic क्योंकि ये heat, light, energy जो है वो release करती है, ठीक है. तो कोई भी कार्बन की चीज़ को, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना इज़ द प्रोसेस नोन एज combustion, and it is an exothermic process. Here are the examples. C+O2 gives CO2 plus heat light. heat light सब में रिलीज होगा. मीथेन प्लस O2 gives H2O plus CO2. Now कोई भी हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करेंगे, वेदर इट इज़ इथेनॉल, मीथेन, इथेन, एनीथिंग, इफ़ वी आर बर्निंग इट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या जहाँ पर भी कंबशन हो रहा है, चाहे कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, ऑलवेज द प्रोडक्ट विल बी H2O and CO2. That is final. And the number of molecules of H2 and CO2 may keep on changing, but the products will be H2O and CO2. मैं चाहे मीथेन लूँ, चाहे ब्यूटेन लूँ, चाहे डेकेन लूँ, चाहे जिसमें 15 कार्बन हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन को if I am burning in presence of oxygen, if I am doing combustion, then the product will always be CO2 and H2O. Only the number of molecules of H2O and CO2 will keep on changing. Now comes oxidation. Oxidation we all know, we have read in chapter 1. इसमें हम ऑक्सीडेशन को थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे. कार्बन कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है, उसको मैंने ऑक्सीडाइज किया, ठीक है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो 2 है हमारे, उनके नाम याद रखना, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है. अब यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, C2H5OH. मैंने इसका ऑक्सीडेशन करवाया. ऑक्सीडेशन करवाने से यहाँ मतलब है वी आर एडिंग 1 ऑक्सीजन. सो व्हाट आई एम गेटिंग एज अ प्रोडक्ट CH3COOH. नाउ लुक एट हियर कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में किस किस चीज़ का डिफरेंस है. कार्बन ऑन रिएक्टेंट साइड इज़ 2, कार्बन ऑन प्रोडक्ट साइड इज़ 2, हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड इज़ 6, हाइड्रोजन ऑन प्रोडक्ट साइड इज़ 4, oxygen on reactant side is 1 and oxygen on product side is 2. That means addition of oxygen and removal of hydrogen is taking place, so we can call it as oxidation. यानी कि इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसीलिए हमारे पास क्या है, इथेनोइक एसिड. सो हम किसी भी अल्कोहल का, चाहे इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन करवाए, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू carboxylic acid. It may be ethanoic acid, it may be propanoic, butanoic acid, depending upon the number of carbon atoms present on the reactant side. comes addition reaction. It is one of the very important reaction. इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट होना चाहिए वो जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है.
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये रिएक्शन ये क्या कहती है कि जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम हाइड्रोजन से ऐड करवाते हैं किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गेट कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो लेट अस टेक एग्जांपल C2H4 यानी कि इथीन। इथीन में मैंने हाइड्रोजन ऐड करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम एज द कैटलिस्ट, तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, इट विल गेट क्लीव्ड और ब्रोकन डाउन। और डबल बॉन्ड टूट गया तो अब कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, हर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने ज़रूरी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन आ जाएगा राइट हैंड साइड ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट कार्बन, एक हाइड्रोजन आ जाएगा राइट हैंड साइड ऑफ सेकंड कार्बन। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया। अब जो हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, वैलेंसी भी कंप्लीट है। पहले हमारे पास था इथीन रिएक्टेंट में, अब हमारे पास प्रोडक्ट में है इथेन। सो वी कैन से दैट एडिशन रिएक्शन में वी आर एडिंग हाइड्रोजन to convert unsaturated hydrocarbon to saturated hydrocarbon. This reaction is also known as hydrogenation, क्योंकि हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। ये रिएक्शन यूज़ होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी या फिर ऑयल्स एंड फैट्स। इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसमें ये रिएक्शन जो है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमें चाहिए और हर स्टेप पे एक हाइड्रोजन हटता जाता है और उसकी जगह एक हैलोजन ऐड होता जाता है। मीन्स हैलोजन इज रिप्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। लेट अस सी इन द फर्स्ट रिएक्शन CH4 + Cl2। यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा, CH3Cl बना, और जो एक हाइड्रोजन रिलीज़ हो गया वो बाकी वाले क्लोरीन के साथ मिक्स होकर क्या बना देगा, HCl। सो यहाँ पर क्या बना, क्लोरोमीथेन + HCl। नेक्स्ट स्टेप में CH3Cl अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, अगेन एक हाइड्रोजन हट गया, CH2Cl2, and the remaining chlorine and the removed hydrogen will form HCl. It will form dichloromethane. Similarly, in the next step also one of the hydrogen will get replaced and chlorine will get added, so it form CHCl3। CHCl3 को हम ट्राईक्लोरोमीथेन भी कहते हैं एंड इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म यू ऑल नो, इट इज़ यूज्ड एज एनेस्थेशिया एंड जो जनरल लेबोरेटरीज़ होती है उसमें इसका प्योर फॉर्म कम ही रखते हैं, एंड क्योंकि ये एनेस्थेशिया की तरह यूज़ होता है। हालांकि अब जो है वो क्लोरोफॉर्म को बहुत सारी रिसर्चेस के बाद हमने पता लगा है कि क्लोरोफॉर्म जो है उसको कितनी क्वांटिटी में एडमिनिस्टर करना है ताकि जो है वो राइट अमाउंट में उसका डोजेज दिया जाए ड्यूरिंग सर्जरीज एंड मेडिकल implications, right? So chloroform is anesthetic agent and the general formula is CHCl3। लास्ट स्टेप CHCl3 में से एक और हाइड्रोजन रिप्लेस किया, we will get CCl4 + HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड + HCl। अब कोई हाइड्रोजन हमारे पास नहीं बचा तो द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। The most important thing about this type of reaction is that this reaction is a photochemical reaction which takes place only in the presence of sunlight। जो reaction sunlight की presence में होती है we call them as photochemical reactions। Next is some important chemical compounds। chemical important कार्बन कंपाउंड्स में पहला है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। इट इज़ कलरलेस लिक्विड विद प्लेजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर। इसमें मेन जो तुम्हें लर्न रखना है वो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है कि जब हम इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है सोडियम इथॉक्साइड + H2। इथेनॉल की रिएक्शन जब हम H2SO4 से करवाते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू C2H4 और इसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं H2SO4 को। क्यों? क्योंकि यहाँ से C2H5OH में से H2O हटा दो तो हमारे पास आता है C2H4। इसीलिए यहाँ पर वाटर के रिमूवल की वजह से हम कंसनट्रेटेड H2SO4 को डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। एंड वी ऑल नो इथेनॉल इज यूज फॉर मेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स। इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट्स इन मैनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज and it is also used for making medicines like tincture, iodine, cough syrup, tonics. We all know that in cough syrups traces or little quantity of ethanol is present.
Next is ethanoic acid. Ethanoic acid means CH3COOH. Again, it is soluble in water, but it has pungent smell and sour taste. And a solution of 5 to 8% ethanoic acid in water is called vinegar. Vinegar that we use in pickles and in many homemade dishes. So vinegar जो है उसका टेस्ट जो होता है वो समवॉट इथेनॉइक एसिड जैसा होता है, क्योंकि उसकी जो क्वांटिटी है इथेनॉइक एसिड की वो बहुत कम होती है विनेगर में, बट द स्मेल इज़ लार्जर और मोर और लेस द सेम. नाउ इसमें इम्पॉर्टेंट है रिएक्शंस. एस्टेरिफिकेशन. एस्टेरिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जब इथेनॉइक एसिड इथेनॉल से रिएक्ट करती है तो एक कंपाउंड बनाती है, कार्बन कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं एस्टर. ठीक है. सो इसमें किस किस की रिएक्शन हुई? इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, that is H2SO4, it forms ester. That's why this reaction is known as esterification. These are the reactions that you have to learn directly, because questions are asked on them directly, right? Like what do you mean by esterification? Explain with the help of reaction. नेक्स्ट कम सेपोनिफिकेशन. सेपोनिफिकेशन यानी कि सोप फॉर्मेशन से जो रिएक्शन रिलेटेड होती है. एस्टर जो है जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो ये बनाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द पेरेंट अल्कोहल इज फॉर्म्ड. द रिएक्शन इज नोन एज सेपोनिफिकेशन. अब यहाँ पर CH3COOC2H5 प्लस NaOH, तो यहाँ हमारे पास बना CH3COONA. इसको हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहा है? CH3COOH क्या होता है? एसिड है, इथेनॉइक एसिड. H हटा के मैंने सोडियम लगा दिया, इसलिए हम इसको कहते हैं कि सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, क्योंकि ये जो सॉल्ट है ये किससे बना है? इथेनॉइक एसिड का ही एक डेरिवेटिव है. एंड प्लस C2H5OH इज़ रिलीज्ड. नेक्स्ट, इथेनॉइक एसिड जब अगर बेस से रिएक्ट करता है तब भी यही बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड प्लस वाटर. अगर इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट से तो भी यही बनता है. बट कीप इन माइंड द बाई प्रोडक्ट्स आर चेंजिंग. साइड प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं. इन द फर्स्ट केस it was C2H5OH, in second case it is water, and in third case with sodium carbonate it is H2O and CO2. Now the last part is remaining, that of soaps and detergents, that we will study from the next lecture, because we have to go in little detail of this topic. So this was all about today. Please go through the book for the topics that we have gone today, and if you are having any kind of doubt, please write in the discussion form, or you can ask me anywhere in the personal window or through the call.